بڑی سبا خراجی کی میں نے آپ کی، شاید میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ 10 برس بعد اپنے لوگ ملے، ایک نام نہاد اسلام پسند دہشت گرد ٹولے نے باغ جناح میں گزشتہ 2-3 دن میں کوشش کی ہے، اور وہ جلسہ ہماری کارنر میٹنگ سے زیادہ بڑا ثابت نہیں ہوا ہے۔ آج بھی ایم کیو ایم کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، اور کراچی میں موجود ایک نام نہاد اسلام پسند جماعت نے بلدیاتی انتخابات میں 1 ارب 45 کروڑ روپے کی میڈیا مہم چلائی تھی، جس میں ہورڈنگ، بینر، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کا بے دریغ استعمال کیا۔ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہم نے کبھی ٹھیکوں کی سیاست کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح۔ سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کا کام ڈسٹرکٹ سینٹرل میں یہ ہوا کہ مین کانکورس لائن سے پانی کی سب سے بڑی سپلائی لائن ضیاء الدین ہسپتال کو گئی۔ نعرہ متحدہ! یہ تو ہاف ہارٹڈ سی ہاں ہے، نیم دلی کی ہاں ہے۔ بھائی میں یا تو پورے ادھر کا قائل ہوں یا پورے ادھر کا قائل ہوں۔ اس جلسگاہ میں موجود واجب الاحترام میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹی، اب تو وہ عمر آ گئی کہ جب کہہ دوں کہ میری پوتی پوتیوں اور نواسی نواسیوں، السلام علیکم! بہت بہت شکریہ۔ خالد بھائی، آج کوئی 10 برس ہو گئے کسی پبلک ایڈریس کو، 10 سال ہو گئے تقریباً، اور 10 سال بعد یہ موقع ملا، اور پہلی بار موقع ملا وہاں سے کہ جہاں سے میں 2008 میں یہیں سے ایم این اے منتخب کیا گیا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے۔ ایم کیو ایم وہ درخشندہ، وہ چمکتا ہوا آفتاب کہ جس میں لوگ، ذمہ دار لیڈرز آتے اور جاتے ہیں۔ کل کا سچ ہم تھے، آج کی حقیقت حسان بھائی ہیں، عثمان ہے، معید انور ہے، اور یہ قافلہ انشاءاللہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا۔ نسلوں پر نسلیں آتی رہیں گی، مگر اس شہر کراچی سے نہ ایم کیو ایم کو پہلے کوئی ختم کر سکا، نہ آج کوئی کر سکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا تو ہمارے شہداء کی قربانیوں کے صدقے ایم کیو ایم کو کوئی ختم کر سکے۔ بڑے کڑے امتحانات دیے ہیں، بڑی مشکلات جھیلی ہیں ہم نے اس شہر کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ نے دیکھا ہے، اس ملک نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے، اور ایک افسوسناک بات بھی ہے، مگر ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہم بعد میں ہیں، گو کہ ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، مگر ہم اس شہر کی قیادت کو اپنے نوجوان ساتھیوں میں جوان ہیں۔ آج ہماری طاقت پھر کراچی کے عوام ہیں،
लोग पूछते थे कि कैसे मुत्तहिद हों। मैंने हमेशा ये कहा कि अगर पानी पर तलवार मारी जाए तो पानी कटता नहीं है, हटता है। जब हम पर जुल्म की तलवार चली, हम कटे नहीं, हम हट गए। और जब पानी की उछाल की कुव्वत से, जो यहां पर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को, पानी की उछाल की कुव्वत को, कि जब पानी जुड़कर उछला और वो जबर की तलवार हमारे ऊपर से उठी तो हम फिर मिल गए। हम कटे नहीं थे, हम हट गए थे। और आज गुज़िश्ता इतवार को होने वाला बाग़े जिना में हमारा जलसा हमारे इत्तेहाद को भी साबित करता है और हमारी अक्सरियत को भी साबित करता है। कराची के मैंडेट के दावेदार तो बहुत सारे लोग कराची के मैंडेट के दावेदार हैं। आज मैं वसूख से कहता हूं कि बाग़े जिनाह में जो गुज़िश्ता इतवार को MQM ने जलसा किया था, आप उसकी बराबरी तो छोड़िए, उसके आधे अवाम को बाग़े जिना में लाकर दिखाइए। हम भी मान लेंगे कि आपका भी कुछ मैंडेट है कराची में। एक नाम नहाद इस्लाम पसंद दहशतगर्द टोले ने बाग़े जिना में गुज़िश्ता 2-3 दिन में कोशिश की है और वो जलसा हमारी कॉर्नर मीटिंग से ज्यादा बड़ा साबित नहीं हुआ है। मेरा ये चैलेंज है बाकी जमातों को भी कि जिसको ये दावा है कि वो कराची का मैंडेट रखता है, हमने तो करके दिखा दिया। अब आपकी बारी है। घोड़ा भी सामने है और मैदान भी दूर नहीं है। आइए आप भी मुजाहिरा कीजिए अपने इत्तेहाद का, अपनी अक्सरियत का, तो लग पता जाएगा कि कौन कितने पानी में है। गुज़िश्ता इतवार के जलसे ने दूध का दूध और पानी का पानी करके रख दिया। हमारी 10 नशिस्तें ताकत की बुनियाद पर हमसे छीनी गई, वरना MQM 6 नशिस्तों की जमात नहीं थी कराची। बावजूद इसके कि तमाम तर नामसाइद हालात थे MQM, आज भी MQM के पास इलेक्शन लड़ने के लिए फंड्स नहीं है और कराची में मौजूद एक नाम नहाद इस्लाम पसंद जमात ने बल्दियाती इंतखाबात में 1 अरब 45 करोड़ रुपए की मीडिया मुहिम चलाई थी, जिसमें होर्डिंग, बैनर्स, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन को MQM के झंडे तो नजर आते हैं, MQM के बैनर तो दिखाई देते हैं। इलेक्शन कमीशन अब तो आपको 21वीं सदी का इलेक्शन कमीशन चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, उसकी पेमेंट्स या तो क्रेडिट कार्ड में होती हैं या रैकेट पर होती हैं उनके। आप जब चाहें PTA पाकिस्तान टेलीकॉम कर सकते हैं कि कौन सी जमात ने इस बार पर कितने पैसे खर्च किए। जरा इस तरफ भी तवज्जो दे लीजिए। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड
लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। ये सिर्फ सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। इलेक्शन कमीशन की ये भी जिम्मेदारी है कि वो फिस्कल लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को दे। शायद 50 लाख रुपए की लिमिट है एक कौमी असेंबली के कैंडिडेट की। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 1 करोड़ रुपया कर दी गई। अब 1 करोड़ रुपया कर दी गई है PMNA। कोई पूछेगा कि ये सियासी जमातें अरबहार रुपया इलेक्शन कैंपेन पर कैसे खर्च कर रहे हैं। टीवी पर एड्स चलाने के पैसे नहीं हैं एमक्यूएम के पास, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं होते थे। मीडिया के लोगों के जिनसे जाती मरासिम थे, ताल्लुकात थे, एमक्यूएम के जरिए जिनके साथ दोस्तियां थी, उनके हाथ पैर जोड़कर कि भाई कुछ ऐड चला दो, भाई कुछ ऐड चला दो, कुछ हमारा भी नजर आ जाए। मगर यहां तो टीवी भरा पड़ा है पेड इलेक्शन कैंपेन से। हम कहां से लाएं? नहीं है हमारे पास, ना हमने कभी ठेकों की सियासत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह। जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एक शख्स को, डॉक्टर आसिम को बाकायदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सौंपा गया, हवाले किया गया उसके, और हवाले करने के बाद ठेकेदारों को दी गई, जहां पर चंद रोडे बनाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि बड़ा डेवलपमेंट का काम हुआ। सबसे बड़ा डेवलपमेंट का काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये हुआ कि मेन कॉन्कोर्स लाइन से पानी की सबसे बड़ी सप्लाई लाइन जियाउद्दीन अस्पताल को गई। उसके ठेके में पैसे खाए गए, पैसे वहीं से बनाए जा रहे हैं, ठेकेदारों से पैसे लिए जा रहे हैं। एक क्लर्क तक की भी बल्दियात में ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मेदार डॉक्टर आसिम। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, आप जिससे चाहे मालूम कर सकते हैं। खुले बंदों ये बात कर रहा हूं। पुलिस अपनी मर्जी की, इंतजामिया अपनी मर्जी की, डेप्यूटी कमिश्नर अपनी मर्जी का, कमिश्नर अपनी मर्जी का, बल्दियाती ताकत अपनी मर्जी की। और उसके बाद भी जब कोई काबिले जिक्र कारनामा नहीं कर पाए तो एमक्यूएम के कारकुनों पर एमक्यूएम के दफ्तर में आकर मुसल्लह जदीद तरीन हथियारों से हमला किया गया, जिसकी वीडियोस आज पूरे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। किस तरीके से एमक्यूएम के कारकुनों को जदीद खुदकार और एक तवील मुद्दत तक, तवील वक्त तक गोलियों का निशाना बनाया गया। हमारा एक साथी शहीद हुआ, और ये एक साथी एक नहीं है। आज से 3 महीने पहले जब एमक्यूएम ने यह फैसला किया कि सोराब गोद के इलाके से हम एमक्यूएम की तारीख में पहली बार कौमी असेंबली का टिकट, जिन लोगों को गुरसा ने एफआईआर में नॉमिनेट किया, उनको एफआईआर में शामिल नहीं होने दिया। शायद पैसे में बड़ी ताकत है, मगर आप कितना ही पैसा इस्तेमाल कर लें, आप एमक्यूएम के मैंडेट और एमक्यूएम के अवाम को खरीद नहीं सकते। हम आपके इस जुल्म और बर्बरियत का जवाब इंशाअल्लाह 8 फरवरी को देंगे, जब हमें बड़ी तादाद में निकल, कसरत के साथ निकलकर
आपके जुल्म और जबर के खिलाफ कराची में वोट डालेंगे। वो दिन गए कि जब खलील खान वाख्ता उड़ाया करते थे। आने वाली दहाई MQM की दहाई है इंशाअल्लाह ताला। ये नौजवान क़यादत MQM को आगे लेकर चलेगी। हम उनके साथ शाना बशाना चलते हुए जो कुछ हमने 35-40 वर्षों में सीखा, हम अपने तजर्बे को उनके साथ शेयर करेंगे ताकि हमारे तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार पहले से दुगनी हो सके इंशाअल्लाह। बड़ी सभा कराची की मैंने आपकी, शायद मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया, मैं माफी चाहता हूं। जाहिर है कि 10 बरस बाद अपने लोग मिले और बड़ी मुश्किल से जलावतनी के 5 बरस और खामोशी के 3 बरस मैंने यहां काटे, मुश्किल। मगर आज आपको देखा तो आंखें भी भर आई और होंठ भी लरकने लगे, वरना मेरे साथ ऐसा होता नहीं है। बस आखिरी बात कि मेरे साथ आज वादा कीजिए कि आप 8 फरवरी को निकलेंगे अपने घरों से। करते हैं वादा आप लोग? जोर से बोलिए, करते हैं वादा? आप मेरे नारे का जवाब दें, मैं समझूंगा कि आपने हां की है। नारे मुत्तहिदा! ये तो हाफ हार्टेड सी हां है, नीम दिली की हां है। भाई मैं या तो पूरे इधर का कायल हूं या पूरे उधर का कायल हूं। एक ताकतवर जवाब दीजिए ताकि मैं खालिद भाई को जहमत दे सकूं कि वो आपसे बात करें। नारे मुत्तहिदा! शाबाश, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।